4 days, all 5 days, in fact, we have been listening that there is nothing in the pitch. Pitch is docile, and it will be difficult to get a result out of this. But the way they batted Bangladesh, the way they bowled, their spinners bowled, it was a sort of awakening call for Pakistan. We didn't select the team well. There was no specialist spinner with the team. And even our fast bowlers didn't cross 140 kph. Naheed Rana was bowling around 150. So I think these were the reason. Do you think so? No, look, I think firstly, over four days, I'm not talking about the fifth day right now, I don't think the pitch was docile. I think the pitch had enough for the seamers. But if you look at the way they played, they were very disciplined in their batting. In the end, we gave them a few chances as well when Mehdi and Mushfiqur were playing. There was a point where we got Mushfiqur out, it was overturned. We got Shadman out, it was overturned. At that point, I felt that we did a lot of good stuff, but as a bowling unit, where we lost the game was probably with the second new ball. I think that's when we were 200 runs ahead in the game. There were 5 wickets down when Litan and Mushfiqur were playing, and that's where we could have actually imposed ourselves in the game. That's where we've sort of let ourselves down, and then obviously, if you look at today with the bat, that's where we've let ourselves down. So it's been a couple of mistakes. You can never pinpoint it at one particular thing. As far as the spinner is concerned, look, I gave my explanation that we thought there was a lot of grass on the wicket. The weather had been around. We'd lost the first half of the day due to weather, and it had rained every day before the game had started. So we never knew that it was going to be that clear. The forecast also indicated for the weather to be disruptive in the game. And those were our thoughts behind declaration as well. We only lost 6 wickets in the first innings. We were 448 runs. I mean, we could have easily gone and scored 550, 600 runs ourselves if we'd carried on batting. We did it to push the game forward, and unfortunately, when they batted really well, which you have to give them, you have to appreciate that, that put us back in the game, and today we found ourselves playing for the draw. ये बताइएगा, मेरे सवालात के 3 हिस्से होंगे. पहला हिस्सा ये है कि आप अपनी इस नाकामी को स्पिनर्स का टीम में ना होना किस हद तक समझते हैं, या नाकामी की वजह एक. दूसरा, बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के जो रवैये हैं खेल के अंदर, कुछ चीज़ें देखी गई हैं, उस पर क्या आप कमेंट्स करना पसंद फरमाएंगे. तीसरी बात, यहाँ 30 तारीख को दूसरा टेस्ट शुरू हो रहा है, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे कि विकेट को किस तर्ज पर होना चाहिए. देखें, सबसे पहले स्पिनर जो उनकी तरफ से भी काम आए, वो आई थिंक 5वें दिन पे आए हैं, और उसमें हम अगर देखें कि किस तरीके से गेम गया है, हमारे पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी एज ए साइड, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, कि हम वो स्पिन का फैक्टर नहीं होता. आई थिंक हमसे कुछ गलतियां हुई हैं जो मैंने पहले भी अभी पिछले क्वेश्चन में शेयर की थी, कि हमारे पास टाइम था उन पे प्रेशर अप्लाई करने का जब हमारी 200 से ज़्यादा की लीड थी. 5 बैट्समैन उनके आउट हो गए थे. अगर आप कल देखें जिस तरीके से हमने कल तीसरा नया बॉल किया है, हमने बहुत जल्दी उनकी आखिरी 3-4 विकटें ली. वो इसलिए ली क्योंकि वो नया बॉल हमने बेहतर किया है. तो कुछ मोमेंट्स होते हैं मैच में, क्रूशल होते हैं. बॉलिंग में आई थिंक वो सेकंड न्यू बॉल का था. बैटिंग में आज का दिन था जिसमें हमें अपनी नर्व होल्ड करनी थी, ज़रा सा प्रेशर हमें वो करना था. अगर एक सेशन हम निकाल लेते विदाउट एक आध विकेट लूज़ करने के बावजूद, तो आई थिंक हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी होती. दूसरा, मुझे आपका रवैये का मुझे वो पार्ट समझ नहीं आया, अगर आप एक्सप्लेन कर सकें. तीसरा देखें, तीसरा टेस्ट होगा. पिच देखें, अभी टाइम है, आज 25 तारीख है, 30 तारीख को शुरू होना है. ग्राउंड्समैन के पास 2 दिन है. ऑब्वियसली हम देखेंगे, कंडीशंस को असेस करेंगे, और जो हमें लगेगा बेस्ट पॉसिबल 11 होगी, हम उसको फील्ड में उतारेंगे इंशाल्लाह. हमने देखा है कि हार जब भी होती है वो यतीम ही होती है, जीत के सारे. इस हार से क्या सीखा होगा आपने, चूँकि ये तसलसल दौरा आयरलैंड हो, इंग्लैंड हो, अमेरिका में वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस हो, या आज की परफॉर्मेंस, ये तसलसल है.
इससे आप एक कैप्टन हैं, अपनी टीम को कैसे निकालेंगे? दिस इज़ द टाइम। 5 दिन आपके पास हैं। ओवर कॉन्फिडेंस थे, 448 6 आउट, फिर अगले दिन भी विकेट्स नहीं गिर रही थी, आपने सब निशानदेही की कि यहाँ पे आपका हुआ, लेकिन टीम का जो मोरल है, कॉन्फिडेंस है, उसको बिल्ड करने के लिए क्या मैयस हैं? क्या टीम मैनेजमेंट बैठी है इस हवाले से? बड़ा अच्छा सवाल किया है सर आपने। देखें, मायूसी हम सबको है, आपको भी है, पूरे पाकिस्तान को है। एज ए टीम का लीडर ऑब्वियसली अपने फ़ैन से, अपने लोगों से हम अपोलोजाइज़ करेंगे कि हम आपको वो रिज़ल्ट नहीं दे सके जो पाकिस्तान डिज़र्व करता है, नंबर 1। अपनी गलतियां हम पूरी एक्सेप्ट करते हैं एज ए टीम। और देखें, एज़ फार एज़ एफ़र्ट की बात थी, आई थिंक ओवर कॉन्फिडेंस जो आपने वर्ड जो क्वेश्चन में यूज़ किया, आई डोंट थिंक कोई ओवर कॉन्फिडेंट था। अगर आप सबकी प्रेपरेशन देखें लीडिंग टू द टेस्ट मैच के दौरान सबके एफर्ट्स देखें, आई थिंक सब ने अपना 100% ज़रूर दिया। लेकिन देखें, गलतियाँ होती हैं और सबसे पहले हम अपना हाथ खड़ा करेंगे कि हमसे गलतियाँ हुई हैं इस टेस्ट मैच में। और जहाँ तक मोराल की बात है, ऑब्वियसली अभी बैठेंगे और हमने पहली बात की थी कि एक टीम गेम है, इसमें आपने एक माहौल ऐसा क्रिएट करना है जिसमें आपकी टीम हमेशा उठी रहे। और देखें, बॉयज़ के साथ हमारा लंच में भी यही मैसेज था कि देखें, जो हुआ वो सो हुआ, उसको हम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? जो हमारे हाथ में हमारा रवैया है, जिसको आप कहते हैं। तो हमारा रवैया ऐसा, गिर गए तो फिर गिरे रहेंगे, अब एक दूसरे को उठाएं और कि देखें जो अब हुआ उसके लिए माजरत, लेकिन अब जो आएगा उसमें हम अपनी पूरी एफर्ट करेंगे, हम उठेंगे, एक दूसरे को उठाएंगे और हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के लिए अच्छा रिजल्ट है। शान, पहले 4 दिन का तो आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया कि टीम कैसे खेली। थोड़ा सा हमें आप बताएंगे कि ये जो सेकंड इनिंग में आपका कोलैप्स हुआ आज, मोस्ट ऑफ द बैटर्स जो टॉप 6 थे वो आपके रैश शॉट्स मार के आउट हुए, मतलब वो टेस्ट लेवल के शॉट्स नहीं थे। तो ऐसा क्या हुआ कि ये के बाद दीगरे आपकी इतनी ज़्यादा विकेटें गिर गई? और आपका अर्लियर प्लान था कि आप लोग ड्रॉ के लिए जाएंगे, लेकिन क्या उनके दोनों स्पिनर्स इतने ज़्यादा इफेक्टिव हो गए आज पहले और दूसरे सेशन में कि टीम 146 पे ऑल आउट हो गई? और क्या सेकंड टेस्ट में हम एक्सपेक्ट करें कि आप एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को लाएंगे? देखिए जोजी भाई, ऑब्वियसली आपको जो स्क्रीन पे नज़र आता है वो ऑब्वियसली वो पूरी पिक्चर होती है कि हुआ क्या है, इवेंट क्या हुआ है। बट आई थिंक इसमें अगर आप देखें, गेम की सिचुएशन होती है और हमने क्रिकेट में देखा है कि कभी कभार चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब आपने वर्ड कैजुअल यूज़ किया, लेकिन आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नंबर 1 आपके फेवर में नहीं जाती। जैसे हमारे 2-3 इनसाइड एजेस पे बोल्ड हुए। आई थिंक दूसरी इनिंग्स में अगर आप बांग्लादेश की भी इनिंग्स देखेंगे, काफ़ी इंस्टेंसेस पे इनसाइड एजेस हुए, वो फाइन लेग पे चौके गए या सिंगल गए। आई थिंक क्रिकेट है, क्रिकेट एक बहुत बड़ा लेवलर है। कुछ दिन ऐसे आएंगे आपके पास जिसमें सारी जो चीज़ें वो आपके फेवर में जाएंगी, कुछ चीज़ें वो आपके फेवर में नहीं जाएंगी। जहां आप उनको क्रेडिट ये देंगे कि उन्होंने एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की मैच में जहां हम अंडर प्रेशर थे। और जब आप प्रेशर में होते हैं तो आई थिंक कभी कभार एज अ प्लेयर बहुत सारी चीज़ें हाफ हार्टेडली होती हैं, क्योंकि आप बेसिकली दो शिप्स में आप क्या कहते हैं, आपके पाँव होते हैं कि भाई मैं अटैक करूं इस वक्त या डिफेंड करूं। सिचुएशन में हमने कभी नहीं कहा था कि हम ड्रॉ खेलने जाएंगे। मैंने कहा रियलिस्टिकली एक ऐसी सिचुएशन थी कि जब 117 रन्स की उनकी लीड थी और मैच में जिस दिन पूरे 90 ओवर्स नहीं होने थे, तो रियलिस्टिकली हमें 250 रन्स तो चाहिए थे कि हम कहते कि हम इसको डिफेंड कर पाएंगे। 250 के लिए हमें 300 रन्स करने पड़ते। तो एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई थी जिसमें आई थिंक कभी कभार बैट्समैन डबल माइंडेड होता है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं। जी आपने बिल्कुल सही बोला कि मिस्टेक्स हुई हैं, और अब हमारे लिए लर्निंग लेसन ये है कि जब प्रेशर अप्लाई होगा, हम किस तरीके से उस प्रेशर को वापस दूसरी टीम पे डालेंगे या हम उस प्रेशर को किस तरीके से एब्जॉर्ब करेंगे। आई थिंक आज वो दिन था जहां हमें एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत थी। बीच में एक स्टेबल पार्टनरशिप आ भी गई थी बाबर की और अब्दुल्ला शफीक की। 1 घंटा वो लोग साथ खेले थे, 30-40 रन्स भी उन्होंने पुट आउट किए थे, और हमें लग रहा था कि अब अगर ये लोग लंच तक खेलते हैं तो हमारे पास एक रिव्यू और रिफ्लेक्शन का टाइम हो गया, इसके बाद हम क्या करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब 1 विकेट गिरी, जिस पे आप बांग्लादेश को क्रेडिट देंगे कि जब हम उनकी 1 विकेट लेते थे, हमने कभी भी 2 विकेट्स इन अ रो नहीं ली पूरे टेस्ट मैच में, बट जब उनको 1 विकेट मिली तो उसके साथ 1-2 और विकेट्स मिली। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट में ये चीज़ें कुछ आपको
प्लान करनी होती हैं, प्रायोरिटाइज़ करनी होती हैं, और आज एज अ बैटिंग यूनिट हमने इस चीज़ पे हम लोग नाकाम रह के हम लोग जब एक विकेट गिरी तो हम किस तरीके से उस कोलैप्स को रोक सकें। स्पिनर की जहाँ तक आपने बात की थी, देखें जो कंडीशंस डिक्टेट करेंगी उस पे हम ज़रूर वो जाएंगे। अबरार ने मैच खेला था, देखें ये भी चीज़ फैक्टर करनी थी, हमारे पास जो एक मेन स्टे हमारा स्पिनर था ऑस्ट्रेलिया में वो उस वक्त फिट नहीं था, उसको इंजरी थी और वो 10 महीने से फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला था, तो अब वो गया है, उसने एक मैच खेला, उसने 30 ओवर्स किए हैं और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि अगर स्पिनर की उधर ज़रूरत पड़ी तो वो खेलेगा और वो ज़रूर परफॉर्म भी करेगा इंशाल्लाह। शान, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9 टीमें हैं। आज इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान 9वें में से 8वें नंबर पे चला गया है, बांग्लादेश ने 6ठी पोजीशन हासिल कर ली है, तो क्या अभी भी कॉन्फिडेंट हैं कि टॉप 2 में पाकिस्तानी टीम चली जाएगी? सो देखें अभी एक मैच हुआ है, एक मैच के बाद अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पिक्चर होगी तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, बट हम लोग क्रिकेट खेलते हैं जीतने के लिए, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं परफॉर्म करने के लिए। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं और आपकी ख्वाहिश यही होती है कि आप अपनी कंट्री को हर एक मैच जिताएं। स्पोर्ट्समैन कभी भी गिव अप नहीं करता, स्पोर्ट्समैन हमेशा कोशिश करता है और हमारे पास है अब हमारा इसके बाद हमारा क्या रिस्पांस होगा एज ए साइड, तो अब हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम अगले मैच से स्टार्ट करें, वो मैच जीतें और फिर आगे इंशाल्लाह उसको रिफ्लेक्ट